जॉब और बिजनेस, इफ यू आर गिवन अ चांस कि आप जॉब पे जाएं या बिजनेस में जाएं, बिजनेस। which one? बिजनेस। आई विल नॉट ओके, गिव एनी नेवर माइंड। परसेंटेज, मैं मैक्सिमम ये कहूंगा कि अपने आप स्टार्टिंग में मिनिमम स्पेंड करो, जो आपकी ओके। बेसिक नेसेसिटी नीड है बस वहां तक स्पेंड करो। लग्जरी पे उतना मत जाओ इनिशियली, सेविंग ज्यादा रखो और मैक्सिमम पे खरीद रहे हो। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एक रियल एस्टेट बाइंग में। राइट, अगर सेकेंड आप थिंग इज अपने कि रहने के लिए या भी बाय करते हैं तब भी, और इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करते हैं तब भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपना एंड यूज के लिए आप रहना है आपको, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे घर के आसपास हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल राइट, कितना दूर राइट। है, एग्जैक्टली। बेसिक चीजों के ऑलराइट, लिए। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर जॉर्ज। एंड जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक इन्वेस्टर हैं, साथ के साथ एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं, और साथ ही आप फैमिली का जो स्कूल है वो भी आप मैनेज कर रहे हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने इतने कम टाइम में इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर ली है। सो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू विजय। या ग्रेट। एंड सी, इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो इतनी सारी जो टाइटल है आपने अचीव कर लिए हैं। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, व्हाट वाज योर फैमिली बैकग्राउंड, योर स्कूलिंग एंड ऑल, प्लीज एलोबरेट अ बिट अबाउट इट। Yeah, Vijay. So I was in multiple schools in my school days. So I was in DPS, and then I went to hostel. I was there in hostel for some time. I went to the Lawrence School, Sanar, and then I was again in DPS. And Okay. then after my 12th, I took Bachelor of Arts in Delhi University with economics as my subject. After Right. that, I took a break. I was working, and then I did my post graduation in finance from Hmm. IM Indore. And then again, I started to work. And now at present, I'm with my family. I'm helping them in their school ventures. Right. So this is my background. I'm also a real estate consultant. I do consultancy for many of the top builders in the country. I'm mainly focusing on Gurgaon and Noida markets. Okay. If I talk about my investment journey, then I can say that I am very lucky on that part because my investment journey started very early in my life. It Okay. all happened because my father has a very good knowledge about finance and investing, and he, right from the smaller days, gave me the good guidance. Mhm. So I'll tell you how it technically started because he was doing stocks and he was investing in stocks. So Mhm. 20 years before, the stock market became, it was happening through the Right. online trade. So he did not have much of a knowledge about computers. So what he used to do Exactly. is he used to ask me to execute the trades on his behalf. So I was the Okay. one who was actually logging into his account, and he'll say buy, he'll say sell, and I was Okay. doing that. I did not have any knowledge about stock. I was just following the instruction that he was telling me. But बेसिकली by आप doing अपने this, फादर का जो हेल्प टेक्निकल पार्ट में कर रहे थे। right, right. But when I was doing this, I was seeing what was happening. I was seeing that we are buying something on a rate, and then when it is going up, after some time we are selling, we are making profit. And ओके। if it is going down, then we are waiting for it to again come back, again rise. So I was observing all these things, and in a very small period of time, I could learn a lot of things. And in another 1.5 year, I was in sixth or seventh class, and ओके। I opened my own Demat account, and I was independently investing. You can say in my class sixth or seventh, I started my ओके, investment journey. इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओह वाओ, Yeah, ग्रेट। so ग्रेट, so that ग्रेट। is how it started. Okay, so basically, I mean, you were into investment from class 6 or 7, 6th और 7th क्लास में, जहाँ पे बच्चे अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर ली। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, Yes, ग्रेट। yes, that ओके। yeah. सो वेल सी, इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं हम पर्सनल फाइनेंसिंग पे ज़्यादा बात करने वाले हैं। सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई भी अपनी जो पर्सनल फाइनेंसिंग है उसको अगर स्टार्ट करना चाहता है, पर्सनल फाइनेंसिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो व्हाट इज बेसिक परक्यूजेट, या वो कैसे स्टार्ट करे? So we have to understand some basic principles. We have to हम्म। understand the importance of saving, and we have to understand the importance of investment. Once we save, then it is important to invest. So importance ओके। of saving and investment, importance of risk. You should understand that what is your risk appetite, and
how much risk you should take so that you can bear those risks. Another factor is having a good knowledge about the different asset class that is available and how to invest in those asset classes. And Okay. the another point is to have goals, both life goals and financial goals. Allocate time frames to them and have a strategy to achieve those life goals. So it is very important to have clarity on all these things: saving, investment, risk, different asset classes, and your financial goals and how to achieve them. ओके ओके, सो यू सेड कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिविजुअली अगर वो आगे जाना चाहता है, इट मीन्स अपनी चीजों पे उसे क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट कितना रहने वाला है, कितना करने वाले हैं, सेविंग के लिए हमें क्या पोर्शन एलोकेट करना है, अपार्ट फ्रॉम देयर हैज टू बी अ क्लासिफिकेशन की एसेट वाला टर्म क्या रहेगा। बिल्कुल। ऑलराइट, तो आप जब सो स्टार्ट करते हो तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप मैक्सिमम सेव करो, और आप जब मैक्सिमम सेव कर रहे हो तो उसको आप अपने रिस्क के एपिटाइट के हिसाब से आप उसको इन्वेस्ट करो। और ओके जब आप आपको गोल्स होना चाहिए। गोल्स मतलब इट शुड नॉट बी कि मेरे को बहुत बड़ा घर लेना है, बहुत बड़ी गाड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को घर लेना है इतने साल के बाद, और वो इतने करोड़ का होगा, इतने लाख का होगा, और मेरे ओके को गाड़ी लेना है इतने साल के बाद, वो इतने लाख का होगा। पर्टिकुलरली यू हैव टू क्वांटिफाई योर गोल्स एंड एक ओके। टाइम फ्रेम देके उसको अचीव करना पड़ेगा। सो इज इट लाइक दैट कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन, ज्यादातर टाइम क्या होता है कि नॉर्मल पीपल जॉब ओरिएंटेड होते हैं, वर्किंग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल, तो अब यहाँ पे अब कोई रेशियो या फिर कुछ परसेंटेज ऐसा कुछ हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को अपनी सैलरी का कितना पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, कितना सेविंग करना चाहिए, या जनरल पर्पस के लिए अपने जो एक्सपेंसेस है वो कितने परसेंट से कंप्लीट करना चाहिए। तो व्हेन वी स्टार्ट अवर करियर तो यूजली क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस बहुत हाई रखते हैं। हम राइट, शॉपिंग पे बहुत जा रहे होते हैं, बाहर फ्रेंडशिप आ रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली। इट इज, आई विल नॉट गिव एनी परसेंटेज। मैं मैक्सिमम ये कहूंगा कि अपने आप स्टार्टिंग में मिनिमम स्पेंड करो। जो आपकी ओके, बेसिक नेसेसिटी नीड है बस वहां तक स्पेंड करो। लग्जरी पे उतना मत जाओ इनिशियली। सेविंग ज्यादा रखो और मैक्सिमम आप इन्वेस्ट करो। आप ओके जितना कर सकते हो उतना आप इन्वेस्ट करो और आप सेव करो। ओके ओके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो बेसिकली ये यही होता है कि आप आज खर्चा नहीं कर रहे हो, आप कुछ पैसा बचा के उसको ग्रो करके और कुछ बड़ा आप आगे खर्चा कर लोगे। एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम आप सेव करो अभी। ओके, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक जनरल पीपल के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। आइडियली व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि लोग स्टॉक्स की बात करते हैं, बॉन्ड्स की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं या ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होता है, व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शंस बेसिकली। There are many available options, like you can go to mutual funds, you can have stocks, you can have PPF, you can have fixed deposit, you can go for real estate, you can go for gold, you can go for commodities, you can go for currency. There are a lot of avenues, but it is very important कि आप ये सब इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक बार नॉलेज हो आपको उसके बाद ही आप इन चीजों में उतरो। एवेन्यूज तो बहुत सारे हैं, लाइक आई टोल्ड यू, इट इज राइट, इम्पोर्टेंट टू हैव द नॉलेज अबाउट दिस। ओके ओके ग्रेट। सो अभी हमने बात करी कि देयर आर डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड्स है, या फिर रियल एस्टेट की बात करें वो भी एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम बात करें इन सब में सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा माना जाएगा। सो विजय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एसेट क्लास कोई भी ऐसा हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट टर्म एनी एसेट एज अ गुड और बैड। व्हाट इज ओके। गुड और बैड वी शुड अंडरस्टैंड इज द प्राइस। आप जो उस एसेट को खरीदने का भाव देते हो, प्राइस देते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका एसेट क्लास अच्छा बना कि बुरा बना। ओके आपके पास आपने एक बहुत अच्छी चीज खरीदी, पर आपने उसके फेयर वैल्यू पे 10 गुना ज्यादा दाम दिया, तो ओके कहीं ना कहीं वो एसेट क्लास आपके लिए खराब हो गया। क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको उससे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाना है, पर आपने इतना प्राइस दे दिया कि आगे का 10 साल का शायद प्रॉफिट खा गया हो। तो मेन चीज जो हमको ध्यान रखना है कि वो आप उस एसेट क्लास को एक्वायर करने के लिए क्या प्राइस दे रहे हो। दैट शुड बी अ वेरी फेयर वैल्यू दैट यू शुड गेट। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट अच्छा बुरा इसमें नहीं है। इसमें ये है कि अलग अलग एसेट क्लास का अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स है। कुछ उसके मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। जैसे मैं अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक की बात करूं तो वो रिलेटिवली गुड रिटर्न्स देते हैं रियल एस्टेट और गोल्ड के कंपैरेटिवली, और बहुत लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कि आप बहुत इजीली उसमें एंटर कर सकते हो और बहुत इजीली एग्जिट कर सकते हो। आज आपने खरीदा, कल आप बेच सकते हो, या आज खरीद के आज ही बेच सकते हो। और वो बहुत हाई वॉलेटाइल होता है, तो काफी अच्छा रिटर्न उसमें आता है।
अब उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि वो वॉलेटाइल है और क्योंकि वो मार्केट से अटैच्ड है, तो मार्केट में रिस्क है, बहुत वाइड स्विंग्स आपको देखने को मिलता है। खासकर अभी कोरोना के टाइम में आप देख रहे हो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, तेजी से राइट नीचे आ रहा है, तो राइट आपका जो पोर्टफोलियो है, आप हर रोज देखोगे इफेक्ट हो रहा होगा, बहुत तेजी से नीचे आ रहा होगा, बहुत तेजी से ऊपर आ रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं उसका कौन है कि लोगों को इतना रिस्क पसंद नहीं है। रियल एस्टेट ओके एंड गोल्ड की बात करें तो रियल एस्टेट एंड गोल्ड का क्रॉस मेरिट ये है कि वो एक रियल एसेट है। मतलब आप जब रियल एस्टेट और गोल्ड खरीदते हो तो आपको एक्चुअली अपना एसेट दिखता है, राइट आप उसको राइट टच एंड फील कर सकते हो, तो वो एक रियल एसेट है। पर देयर इज फिजिकल उसका सब्सटेंस yes, it's a physical good or physical substance, you can actually touch and feel them। पर उसका डीमेरिट ये है कि क्योंकि ये फिजिकल है, उसको मेंटेन करना और उसको स्टोर करने का एक कॉस्ट हो सकता है। राइट और अलग डीमेरिट है कि ये बहुत इलिक्विड होता है रियल एस्टेट। जो आपको कुछ बेचना है तो आप अगले दिन या आज में नहीं बेच सकते, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत लोगों से आप बात करोगे, तो इट टेक्स टाइम, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ मे बी अ ईयर एग्जैक्टली ऑल्सो, तो दैट इज अ एग्जैक्टली डीमेरिट। या ओके तो आपको ग्रेट इम्पोर्टेंट इसमें प्राइस का ध्यान रखना है कि आप जो चीज खरीदते हो आप उसको अच्छे प्राइस में आप खरीद रहे हो। राइट सो एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स, हर किसी के अपने बेनिफिट हैं, कहीं ना कहीं थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। राइट लाइक रियल स्टेट का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, वो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ये रहता है कि जब आपको एक्चुअल में मनी चाहिए तब आप उसको निकाल नहीं सकते। ऐसा होता ही नहीं है, ज्यादातर टाइम ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत है, रियल स्टेट में उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट व्हेन एक्चुअली दे नीड मनी तो वो उसको सेल आउट नहीं कर पाते हैं, कभी बायर नहीं मिलता है, कभी वो एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है। सो दीज आर द दैट्स प्रोस राइट, एंड कॉन्स एग्जैक्टली। दैट्स राइट। ओके अब हम अगर पर्सनल फाइनेंसिंग की तरफ बात करें तो जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, व्हाट आई फाउंड कि म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट दिस इज जनरली कंसिडर्ड बाय द पीपल, या फिर मार्केट में कहें तो मार्केट में भी ऐसा ही कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली, इसमें कितनी सच्चाई है या क्या सही है क्या गलत है, प्लीज क्लेरिफाई। तो व्हाट इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या राइट होता है? म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव, एक पूल मनी होता है जहाँ पे अलग अलग लोग आके फंड में पैसा डालते हैं, और वो एक अच्छे फंड मैनेजर को बेसिकली अलोकेट कर देते हैं पैसा। वो फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज के हिसाब से वो आपके बिहाफ पे पैसा लगाता है। ओके तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड ऐसे, इक्विटी, प्योर इक्विटी है जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। प्योर डेप्थ है जहाँ पे डेप्थ मार्केट में लग रहा है पूरा पैसा आपका। और हाइब्रिड भी होता है जहाँ थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेप्थ में लग रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड की सेफ्टी की बात कर रहे हो, तो अगर आप यूजली हम ये सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है, सबसे सेफेस्ट है, इट इज नॉट राइट टू से दैट, बिकॉज सपोज मैं एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, तो एक्चुअली वो क्या रहा है, मेरा पूरा पैसा इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है। तो स्टॉक मार्केट अगर जनरली मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी उससे इफेक्ट हो रहा है। तो से अ वेरी वाइल्ड स्विंग, मार्केट बहुत तेजी से बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोविड या किसी वजह से बहुत नीचे गिर गया, तो मेरा पोर्टफोलियो भी उसके प्रोपोर्शनेट में इफेक्ट हो गया होगा। तो उसमें रिस्क है, तो यू कैन नॉट से दैट इट इज लेस रिस्क या रिस्क नहीं है उसमें। अगर आप कंपेयर करते हो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से, जहां आप खुद अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, तो उसके कंपैरेटिवली में आप कह सकते हो कि थोड़ा कम रिस्की है। पर कम रिस्क है इसलिए रिटर्न भी कम होगा। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कर रहे होंगे तो शायद आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा होगा। तो कंपैरेटिवली टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आई विल से इट इज लेस रिस्की, बट इन ओवरऑल इट इज रिस्की। ओके ओके सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड जो है वो बिल्कुल ही सेफेस्ट है, या फिर उसमें रिस्क नहीं है। देयर इज आल्सो अ रिस्क, बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो स्टॉक के मुकाबले कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, राइट। राइट, राइट। ओके ग्रेट। चीज जो विजय, जो हमको ध्यान रखनी है रिस्क के उस पे कि ओके जहाँ पे रिस्क है वहीं पे रिटर्न है। राइट राइट अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आपको एफडी में बोला गया कि 6% मिला है, तो आपको 6% ही मिलेगा, आपको 6.1 या 5.9 नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका उधर रिस्क जीरो है, आपको फिक्स बताया हुआ है कि आपको इतना मिलेगा। पर आप जब रिस्क लेते हो तो आपका रिटर्न 11%, 12%, 15%, 18%, कितना, क्योंकि आपने वो रिस्क लिया है। तो वो ऊपर भी जा सकता है और वो नीचे भी आ सकता है। वो रिस्क आपने ले लिया है पहले, और उसके बेसिस पे ही आपको वो स्विंग का फायदा मिल रहा है। exactly। अगर हम म्यूचुअल फंड से हट के बात करें स्टॉक की या ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की, so basically what I want to know is who is an investor? Is there any kind of difference between trader and investor? Yes. So there is a difference between an investor and a trader.
इन्वेस्टर बेसिकली लॉन्ग टर्म व्यू से चलता है। वो कुछ भी खरीदता है तो पहले वो फंडामेंटल बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग लेता है, जैसे वो बैलेंस शीट चेक कर सकता है, उसका इनकम ओके स्टेटमेंट चेक कर सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर सकता है, और उसके बेसिस पे वो कुछ ट्रेड लेता है। ओके और usually he has a longer time frame. On the other hand, trader he will not have a longer time frame. वो बहुत short term player होता है और वो इतना ओके फंडामेंटल पे नहीं जाता, वो टेक्निकल पे जाता है। मतलब वो उसके चार्ट वगैरह स्टडी करता है, उसका मोमेंटम स्टडी करता है और वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें ओके क्या होता है, उसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के भी ज्यादा चांसेस हैं, बट लॉसेस के भी आपको चांसेस ज्यादा रहता है एज अ ट्रेडर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को दो अलग तरीके से ट्रीट करता है। वो या तो ओके उसको इन्वेस्टर बोलते हैं या ट्रेडर बोलते हैं, हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी। अगर ओके आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आपने ये अपने आप को बोला कि मैं मार्केट में पार्टिसिपेट करता हूँ एंड आई एम एन इन्वेस्टर, तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट होगा वो अलग होगा। और अगर आप ओके ट्रेडर हो, आप अपने आप को ट्रेडर डिक्लेयर करते हो, तो आपका टैक्स ब्रैकेट डिफरेंट होगा। से ओके यू आर अ इन्वेस्टर एंड यू आर मेकिंग अ गेन, देन दैट गेन इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन, और आपका ओके कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग आपका टैक्स स्लैब आपको लगेगा। से शॉर्ट टर्म अभी जो कैपिटल गेन चल रहा है दैट इज 15%। मतलब आपने अगर एक साल से पहले बेचा तो 15% का टैक्स है। ओके अगर आपने लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर के बाद बेचा, तो अगर बिलो 1 लाख है देन इट इज निल, अबव 1 लाख इट इज 10%। ओके तो ये हो गया इन्वेस्टर का। अगर आप ट्रेडर हो तो बेसिकली क्या होता है, आप कुछ भी प्रॉफिट बनाते हो वो आपका बिजनेस इनकम काउंट होता है। बिजनेस इनकम मतलब आपका अगर अदर इनकम सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के सपोज आप 8 लाख रुपीज बन रहा है और आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 1 लाख रुपए आपके इनकम में जुड़ रहा है और अब आपका न्यू इनकम हो गया 9 लाख रुपीज। 9 lakhs और rupees आप जिस टैक्स स्लैब में पढ़ोगे उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका प्रॉफिट लगेगा, ओके सॉरी टैक्स ओके लगेगा। से ओके आप 20% ब्रैकेट में हो, 30% ब्रैकेट में, उस हिसाब से आपको अपना टैक्स गेन्स ब्रैकेट होगा का टैक्स देना पड़ेगा। तो इवन अवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेशन के स्टाइल के हिसाब से हमको कैटेगराइज करता है। तो ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो या आप इन्वेस्टर बनना चाहते इस ओके सो इज देयर एनी काइंड ऑफ टाइम फ्रेम कि ट्रेडर किसको कहा जाए या इन्वेस्टर किसको कहा जाए? लेट्स सपोज समबडी इज ट्रेडिंग, कोई डेली बेसिस पे शेयर परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, और किसी ने अभी जो शेयर्स है वो बाय कर लिए हैं, 6 महीने बाद सेल करना चाहता है या 1 साल बाद, इज देयर एनी काइंड ऑफ टाइम डिफरेंस कि किसको ट्रेडर माना जाए और किसको इन्वेस्टर माना जाए? हो। तो अगर आप सेम डे खरीद रहे हो सेम डे बेच रहे हो तो आप श्योर शॉट ट्रेडर हो, आप ओके इन्वेस्टर नहीं हो। ओके और अगर आप थोड़ा 6 मंथ 7 मंथ्स में बेच रहे हो तो वो आपको कॉल लेना है कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो कि इन्वेस्टर बनना चाहते हो। अगर आपकी ओके फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आप रेगुलरली खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो आप ट्रेडर हो। ओके आप उतना ओके रेगुलरली नहीं कर रहे, कभी कभार कर रहे हो, तो आप इन्वेस्टर हो। अगर आप ओके सेम डे खरीद के सेम डे बेच रहे हो देन इट इज अ इंट्रा डे एंड यू आर अ ट्रेडर, आपको ट्रेडर ही बोलना पड़ेगा। ओके ओके सो सेम डे की जो ट्रेडिंग होती है दैट इज नोन एज इंट्राडे। कैन यू इंट्रा डे। एलेबोरेट कि इंट्राडे की ट्रेडिंग में क्या क्या जो मिस्टेक्स होते हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स अभी बेसिकली विच विल बी टेकन केयर ऑफ, या फिर ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो एक बिगनर बहुत ज्यादा करते हैं और उनको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए जहाँ से उनका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सके? और ऐसे हम कहें कि इसको सिर्फ इंट्राडे वाले ही नहीं, एक जो इन्वेस्टर होता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करने हैं। ओके। तो इंट्राडे में बेसिकली होता है कि आप पोजीशन लेते हो और आप वो पोजीशन को सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देते हो या आप एग्जिट कर लेते हो। तो उसे आपने आज बाई करा और आप आज ही उसको सेल कर दोगे, या आपने पहले सेल करा और आप आज आज में उसको बाई करके आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे। तो राइट 9:15 to 3:30 हमारा मार्केट आवर्स होता है। तो बोथ बाइंग एंड सेलिंग और सेलिंग एंड बाइंग उस डे पे ही कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, वो दैट इज इंट्राडे। ओके अब उसमें रिस्क ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने कोई ट्रेड लिया तो आपको आपने बेसिकली आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो, एक आइडिया लगा रहे हो कि शायद ये उठने वाला है इसलिए मैं बाई कर रहा हूँ और अब मैं हायर प्राइस में इसको आज ही बेच दूंगा, पर हो सकता है वो नीचे ओके चला जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप स्टॉप लॉस रखो। आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड करो कि अगर इस लेवल पे आ गया तो मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं बेयर करूंगा, इस रेट पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड को। तो स्टॉप लॉस ओके रखना बहुत जरूरी है इंट्राडे में।
ओके, सो दैट इज वन थिंग कि एक अगर हम Yeah. मिस्टेक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना जरूरी है। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं जो रिसर्च है वो करके चलना जरूरी है और एक स्ट्रेटजी जरूर बनानी है। Right. ओके, परफेक्ट। सो अगर हम एक 20-25 इयर्स ओल्ड कैंडिडेट की बात करें या फिर जिसने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है जो 20-25 की एज ब्रैकेट में आता हो, उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? So अगर हम एक यूथ की बात करें या एक मिलेनियल की बात करें, say bracket of 25 to 30 35, so it is their basically either they have started their career or they are in very much ज्यादा पुराने हुए नहीं हैं, तो आई विल से कि they should spend less, save more and invest more. They ओके, should understand the power of compounding. उनको पता होना चाहिए कि जो आप सेव कर रहे हो, अगर 1 रुपया भी आप एक्स्ट्रा सेव कर रहे हो, तो 30 ईयर्स 40 ईयर्स डाउन द लाइन वो एक रुपया 1 रुपया नहीं रहता, वो बहुत शायद बहुत थाउजेंड्स फास्ट में चला अमाउंट हो जाता है. जाता है। राइट, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप समझो बहुत अर्ली. और another point I'll say is that have a knowledge about finance, have a knowledge about the different assets and make informed decision. किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए नहीं कर रहे हो आप, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और उस हिसाब से आप बिहेव करो. these are the points basically when if you are someone who is watching and you are between age bracket of 20, 25 और 30, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आई मीन इट्स जस्ट योर स्टार्ट और आपके करियर का अभी स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो सेविंग पे ज्यादा होना चाहिए ना कि स्पेंडिंग पे। और साथ ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी समझना जरूरी है, बिकॉज देयर इज सेइंग बाय आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। Exactly. So it is also said by Mr. George, जो अभी अभी हमें बता रहे हैं सारे टिप्स। So, George, can you please tell us कि if somebody wants to plan their retirement, कि उनको अगर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है कंसिडरिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का ध्यान रख के और अपनी एज फैक्टर का ध्यान रख के, तो और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए? और रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली में अगर करना हो एक 20 इयर्स का जो अभी करियर बिगनर है उसको, या फिर कोई 30 इयर्स ओल्ड है या कोई 40 इयर्स ओल्ड पर्सन है, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कंसीडर करने चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली में करे कैसे? So Vijay, different people will have different responsibilities in their life. They will have राइट, different राइट, goals जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अचीव करा होगा या अचीव करना होगा उनको. तो सबकी एग्जैक्टली, प्लानिंग बहुत डिफरेंट रहेगी, पर जो बेसिक रहेगा बहुत कॉमन रहेगा, दैट इज कि आपको कब रिटायर होना है, कितना टाइम बचा हुआ है, ओके, और क्या आपका कॉर्पस होना चाहिए, किस किस अमाउंट पे आप अपने आप को रिटायर होना चाहते हो और अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ यू वांट टू spend with what amount of money. So it is ओके, very important that you quantify your corpus, your retirement goal, and you give a time frame to it. And based on that time frame, you choose the asset class. So in your initial days, in your 20s, 30s, you can be more into stocks, mutual funds, take that risk and get those extra returns. But in the later part of your life, in your 50s, 60s, it is better to go to the सेफर ऑप्शंस, बॉन्ड्स, एफडीज, सो दैट इतना रिस्क नहीं है और आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है. तो उस वे में आपको अपना बेसिकली करना चाहिए कि इनिशियली आपने थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो, ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो, बट थोड़ा बाद में यू शुड बी इन सेफर मोड. और बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करो. आपने गोल दे दिया और आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रेगुलरली ट्रैक योर पोर्टफोलियो, ट्रैक दी प्रोग्रेस. ओके, और अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ उसको करना है, रीबैलेंस करना है, इम्प्रोवाइज तो आप करना है उसको, यस, बाय तो द आप टाइम। उसको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते रहो और अपना जो गोल है वो आपको अचीव करना है. सो इसको अगर हम सम अप करें इन अ वे, तो ऐसा कहा जाना चाहिए कि अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रिटायर करोगे तो आपको कितने पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज अभी आपकी जो स्पेंडिंग है हैबिट, वो जो आपके खर्चे हैं 50,000 से 1 लाख रुपीज के बिटवीन रहते हैं या एक स्पेसिफिक अमाउंट, तो वो आज से जब आप रिटायर होने वाले हो 20 इयर्स लेटर या फिर 40 इयर्स लेटर, जब भी आप रिटायर कर रहे हो तो कितने अमाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वो अमाउंट साइज ध्यान में रख के फिर अकॉर्डिंगली आपको जो एसेट्स एलोकेशन है वो करना चाहिए कि आप किस किस चीज में इन्वेस्ट करोगे, वेदर यू आर गोइंग फॉर
स्टॉक ऑप्शंस या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, या फिर उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हो। और देन बाय द टाइम आपको जो अपनी एलोकेशन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर कुछ डिसबैलेंस हो रहा है या कोई अमाउंट मिसमैच हो रहा है या आने वाले टाइम में वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो भी आप उस टाइम पे चेंज कर सकें। इट शुड बी इन दैट वे, राइट? इफ आई एम नॉट Yes, रॉन्ग। yes, या you summed up actually very well. Yeah. ग्रेट। सो जॉर्ज, अभी हमने पर्सनल फाइनेंसिंग की बात करी, रिटायरमेंट प्लानिंग की भी बात करी है, और वहीं अगर 20-25 ईयर्स ओल्ड पर्सन के लिए जो बिगनर होता है स्टॉक में, ट्रेडिंग में, कैसे उसे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, इसकी भी बात करी। अब मैं आपसे थोड़ा सा जो आपका ध्यान है वो रियल एस्टेट की तरफ ले जाना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली जो एक जनरल पर्सन है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम, या फिर घर किसी को बाय करना होता है या रेंट पे लेना होता है, तो इस टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, या फिर कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? So when we come to real estate, you have to be very give a lot of importance to location. कि आप किस ओके, लोकेशन पे खरीद रहे हो। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एक रियल एस्टेट बाइंग में। राइट। अगर सेकंड हम थिंग इज अपने कि रहने के लिए या भी बाय करते हैं तब भी, और इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करते हैं तब भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपना एंड यूज के लिए आप रहना है आपको, फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे घर के आसपास हॉस्पिटल कितना दूर है, स्कूल राइट, कितना दूर राइट, है, एग्जैक्टली। बेसिक चीजों के लिए, ग्रोसरी के लिए कितना दूर है, मॉल्स कितना दूर है एंटरटेनमेंट के लिए। और एक राइट, इन्वेस्टर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं मेरे को इसको रेंट आउट करना है तो आसपास किस कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब ये आईटी हब है कि ये एग्जैक्टली। कैसा ये जगह है, मेरे कमर्शियल क्या रेजिडेंशियल। प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ थंब रूल, आप इसको कह सकते हो कि लोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर बाइंग द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। अब आप जब अपने लोकेशन आपने फाइनलाइज कर लिया, अब सेकंड आता है प्राइस। ये लोकेशन प्राइस को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लोकेशन पे लोगे तो ऑब्वियसली उसका प्राइस हायर होगा, बट वो इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि अगेन कि आपका एसेट क्लास ही वो जो एसेट आपने खरीदा वो खराब हो गया। राइट, एंड द राइट, अदर फैक्टर वुड बी इन टुडेज टाइम इट इज बिल्डर। आपको ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहना पड़ेगा कि आप एक अच्छे बिल्डर से ले रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितने सारे प्रोजेक्ट स्टक हैं, लोगों ने एक्सक्यूट। अपना हार्ड एंड मनी लगाया है राइट, और वो राइट, एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो दिस थ्री इनफैक्ट इस पे फैक्टर्स तो वुड बी काफी वेरी सारे इंपॉर्टेंट। स्कैम भी सुनने को आए हैं। दैट्स राइट। राइट, तो इसलिए आप देख रहे हो कि अभी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मेनली डोमिनेट जो अपने कॉर्पोरेट्स हैं वो कर रहे हैं, जैसे गोदरेज है या फिर टाटा है, अडानी है। पहले हम देखते थे कि बिल्डर जो होता था वो उसके पास सिर्फ रियल एस्टेट का काम होता था, वो रियल एस्टेट के अलावा और कुछ नहीं करते थे। पर राइट, आज के राइट, टाइम में मार्केट बहुत यू कैन से बहुत अच्छी मार्केट हो गई है। अच्छे बड़े ओके, बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए हैं और आपको जो प्रॉमिसेस मिलते हैं एक्चुअली वो वरना उससे बेटर कंप्लीट। मिलता है। सो वन एंड थिंग जो, यस प्लीज। one advice I will give to all the people watching this is that if you are planning to buy a real estate, then this is the perfect time for you. I'll tell you ओके, why. Because I'll talk about facts here. आप जब घर खरीदते हो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा वैल्यू होगा और आपको लोन की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम में जो होम लोन इंटरेस्ट रेट चल रहा है इट इज लाइफ टाइम लो। ओके, 6.8%, 6.75% पे आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको घर मिल रहा है। इससे कम रेट आज तक कभी नहीं हुआ है। बैंक्स के पास बहुत फंड्स हैं, दे आर वेरी मच लिक्विड, और आप अप्लाई भी करते हो लोन तो आपको बहुत इजीली सैंक्शन हो जाता है, कुछ बहुत बड़े रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इंटरेस्ट रेट बहुत बहुत लो है, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और इवन आवर करंट गवर्नमेंट दे आर फोकस्ड अ लॉट इन गिविंग हाउसिंग टू ऑल। तो अगर आपका फर्स्ट ओके, हाउस है और जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स है उसमें अगर आप फिट बैठते हो तो यू कैन गेट सब्सिडीज। ओके, सब्सिडी एज हाई एज 2.73 लाख रुपीज की आपको सब्सिडी मिलता है। मतलब अगर राइट, आपने राइट, 30 लाख का घर खरीदा, आपका फर्स्ट होम है, आप जो गवर्नमेंट के ब्रैकेट है उसमें आते हो, तो आपका घर 30 का नहीं आपको 27 का पड़ा। वो ओके, 27 का भी आपको हो सकता है 10-20% आपको अपने पॉकेट से लगाना है, बाकी आप 6.75-6.8% पे आप जो बैंक लोन सैंक्शन। पे ले सकते हो। राइट, तो इट इज एक्चुअली द एनीबडी वांटिंग टू बाय अ रियल एस्टेट सो and दिस इज द use बेस्ट टाइम। investment, this is the perfect time for them. Yes. Okay, okay. So there is one thing what you should keep in mind whenever you are investing in real estate.
या फिर आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए भी ले रहे हैं, तो एक खास ध्यान रखिए जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी। दूसरा, आप जिस बिल्डर से ले रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। That's ऑलराइट, correct. ग्रेट। So now we will move towards our gaming round, George brother. और इसमें I'll ask you a certain questions, और उसका आपको टाइम नहीं लेना है। बेसिकली यू हैव टू आंसर ऑन द स्पॉट, जो भी चीजें आपके माइंड में आएगी आपको वही आंसर करना है। बस थंब रूल ये है कि आपको टाइम नहीं लेना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, yes. ओके, ओके। सो व्हिच इज योर फेवरेट बुक? Rich Dad Poor Dad. ओके, इज दैट व्हाट आई, जॉब और बिजनेस, इफ यू हैव गिवन अ चांस कि आप जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं, Business. which one? Business? Oh, great. Yeah. Even my favorite. What do you miss the most? School life or college life? College life. Great. कहीं अर्बन एरियाज होते हैं वो भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, रूरल एरिया भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इन अ वे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विलेज लाइफ चूज करने का मौका मिले या फिर सिटी लाइफ, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्ट करोगे? I'll choose village life, but it should be like a good village. वहाँ गुड पे प्लेस, गॉट इट, पावर गॉट इट, जो सप्लाई हो, बेसिक फैसिलिटीज। हाँ बेसिक अच्छे फैसिलिटीज या। सो जॉर्ज, इट्स बीन अ लॉन्ग ईयर। आपने करियर की शुरुआत कर ली बचपन से, स्कूलिंग कॉलेज कंप्लीट करके, नाउ यू आर इनटू योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। और तो इस पूरी जर्नी में व्हाट यू मिस द मोस्ट? आप कोई ऐसा इंसिडेंट्स या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम, फूड या फिर किसी पर्सन को, क्या आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? I'll say my childhood days ओके, when we were चाइल्डहुड very डेज। free and we could play complete day, no responsibilities, just enjoy your life. Okay, great, great, great. So, if you have been out of India, तो which country impressed you a lot? या फिर आपने अगर अपनी रिसर्च करी हो तो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, although you know we are Indian, तो हमें अपनी मातृभूमि से तो बहुत ज्यादा प्यार है, definitely. Even I love my country. But अगर ये कहा जाए कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को चूज करना हो, या ऐसा कोई प्लेस जिसे आपने विजिट किया हो और आपको लगा हो वाओ दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर आई वांट टू बी? I think it will be US. यूएस, ओके, ग्रेट। अगर आपको टाइम मशीन से वापस जाने का मौका मिले तो आप ऐसी क्या चीज है अपनी लाइफ की जो चेंज करना चाहोगे? Actually मैंने 11th में I took science और I would Okay. want to change that to commerce. कॉमर्स, ओके, ग्रेट। Yeah. आपके हिसाब से कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है? As per I have heard and I have read, I think Finland is doing a good job. इन योर ओपिनियन इंडिया में कौन से सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इवन इफ इट्स एजुकेशन, फाइनेंस, बिजनेस सेक्टर या फिर एंटरटेनमेंट, किस सेक्टर आपके ओपिनियन में कौन से सेक्टर पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? So right now what we are seeing, what is happening around us, so I'll say सबसे important is healthcare. Healthcare sector. Okay, great. I'll just ask you one thing, George. What are the advice you would like to give to our audience? बेसिकली जो भी हमारी हमारी ऑडियंस है या जो स्टूडेंट्स अभी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, आपके आपकी तरफ से क्या एडवाइस होनी चाहिए उनके? My advice would be that take financial literacy a little bit seriously. आप समझो कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। आपके पास हो सकता है कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आप पैसा कमा रहे हो, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एटमोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एक फॉर्चून कमाना है, आपको रिच बनना है, तो वो आप तभी होंगे जब आपने जो कमाया है पैसा, वो पैसा आपको पैसा कमा के देगी। अगर आप अकेले मेहनत करते रहोगे, पैसा कमाते रहोगे, तो आप शायद सरवाइव कर जाओगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ से कुछ कर लोगे, पर आपको एक अगर फॉर्चून बनाना है, एक रिचनेस चाहिए, तो आपका पैसा आपके लिए काम करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो यस, फाइनेंशियल लिटरेसी इज व्हाट आई विल एडवाइस फॉर। एग्जैक्टली, इवन आई वाज रीडिंग अ बुक, उस बुक में एक लाइन लिखी हुई थी कि मैं उस पैसे को अपना पैसा नहीं मानता जब तक मेरे पैसे का पैसा मुझे पैसा बना के नहीं दे रहा। इट मीन्स इट वाज जस्ट लाइक दैट कि एक बच्चा है, उसके पिता है और उसके भी पिता है, तो कहीं ना कहीं एक जो पैसा आता है उससे पैसा कमाया जाता है, उसके बाद जो पैसा कमाया जाता है वो आपको यूज करना है, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ रिच। उस बुक में ये चीज डिफाइन की हुई थी। सो एग्जैक्टली यू सेड राइट, हमारे इंडिया में वैसे भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत कम है और लोगों को बहुत कम समझ होती है। इवन हमारे एजुकेशन करिकुलम में भी फाइनेंस के बारे में नहीं होता, जो जनरली हम पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना सीख पाते हैं वो सीख पाते हैं।
ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं जॉर्ज ब्रदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने अपना टाइम निकाला, हमें इतनी सारी चीजें बातें बताई जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे ऑडियंस को भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रॉम माय ऑडियंस, फ्रॉम माय एंटायर टीम, आई पर्सनली थैंक यू सो मच। एंड आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, आपकी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो और आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाए। Thank you, Vijay. Really, really thank you for having me on your show. And I am also seeing that you are doing a very good job, calling all those good people, talking to them, and sharing with your audience. I wish you all the luck, and you're sure to do good. Thank you.